خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ جب ابا اور اماں کی شادی ہوئی، دیکھنے والے کہتے تھے کہ اس شادی کا انجام جدائی ہوگا، لیکن انجام سے بے پرواہ قدرت نے مجھ کو ماں اور باپ کے درمیان ایک راستے کی صورت میں پیدا کر دیا، لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے۔ میں صرف 3 ماہ کی تھی کہ اماں اور ابا میں طلاق ہو گئی۔ اب میں کبھی ماں کی محبت بھری گود کو ترستی، کبھی باپ کے پیار بھرے بولوں کو تڑپتی۔ پہلے باپ نے مجھے ماں سے چھینا، پھر حالات نے ماں کو مجھ سے چھین لیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد ماموں کی کاوشوں سے ماں کا گھر تو آباد ہو گیا، مگر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ جب دل میں ماں سے ملنے، ان کے آنچل میں زندگی بسر کرنے کی امید کا دیا بجھ گیا۔ جب دوسرے بچوں کو ماں سے لپٹتے دیکھتی، دل میں ایک ہک سی اٹھتی۔ ابا جلد ہی میری ذمہ داری سے گھبرا گئے۔ تبھی نانی اماں کی خواہش پر میں باپ کے گھر سے نانی کے ہاں منتقل ہو گئی۔ ماں سے جدائی کا درد تو سہا تھا، باپ سے جدائی کا دکھ بھی سہ لیا۔ والد نے نانی سے عہد کیا کہ اپنی بچی کا خرچہ میں آپ کو دیا کروں گا۔ ایک عہد کریں کہ اس کو سوتیلے باپ کے حوالے نہ کریں گی اور نہ یہ ماں سے ملنے اس گھر جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک غیر شخص کے ٹکڑوں پر پلے اور میرے ہوتے ہوئے سوتیلے باپ کو ابا کہہ کر پکارے۔ یہ میری غیرت کو گوارا نہ ہوگا۔ نانی اماں نے عہد کر لیا کہ مجھ کو میری ماں کے حوالے نہ کریں گی اور نہ ان کو مجھے لے جانے دیں گی۔ ان کے اطمینان دلانے سے میرے والد مطمئن ہو گئے۔ والدہ کبھی کبھار ملنے کو نانی اماں کے گھر آیا کرتی تھیں۔ جب ان کو پتا چلا کہ میں ان کی ماں کے آنچل کے سائے میں آ گئی ہوں تو وہ خوش ہو گئیں، بولی، ہمیشہ کی جدائی سے کبھی کبھار کی ملاقات پھر غنیمت ہے، بیٹی کی صورت تو دیکھ لیا کروں گی۔ اب وہ آتی تو مجھے گود میں بھر لیتی اور میں بھی ان کے گرد باہیں ڈال دیتی تھی، لیکن یہ کبھی کبھار کی ملاقات پیار کی پیاس کو اور بھڑکا گیا۔ اب ماں جب میں کے آتی، میں دوڑ کر ان کے ساتھ چمٹ جاتی۔ وہ رونے لگ جاتی، تبھی میں بھی ان سے لپٹ کر خوب آنسو بہاتی۔ وہ نانی اماں سے کہتی، میری بیٹی مجھے دے دو۔ نانی عذر کرتی کہ اس کا باپ میرے حوالے اس وعدے پر کر گیا ہے کہ میں اس کو تمہارے حوالے نہ کروں گی اور نہ سوتیلے باپ کے گھر بھیجوں گی۔ اب تم مجھ کو عہد شکنی پر مجبور نہ کرو اور اس بڑھاپے میں جھوٹا نہ بنا۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جب اماں آ کر روتی، میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگتا اور میں ان سے لپٹ جاتی۔ تب ان سے جدائی موت جیسی تکلیف دے لگنے لگتی۔ یہی چاہ ہوتی کہ ماں کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤں، مگر بوڑھی نانی کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی لڑیاں میرے پیروں کی زنجیر بن جاتی۔ کبھی کبھار سوتیلے والد بھی ماں کے ساتھ آتے تھے اور ہم ماں بیٹی کا اداس ملاپ دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ آخر کار یہ آئے دن کا رونا رنگ لے آیا۔ ایک روز نانی اماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ گھر میں خالہ اور میں تھے۔ نانی کی حالت بگڑ جانے سے ان کو ہسپتال لے جانا ناگزیر ہو گیا۔ خالہ نے پڑوس میں جا کر منت کی کہ ان کی والدہ کو ہسپتال لے جانے میں مدد کرے۔ پڑوسی نانی کو ہسپتال لے گئے۔ میں اور خالہ گھر پر تھے۔ خالہ نے اماں کو فون کر کے صورت حال بتائی۔ وہ فوراً اپنے شوہر کے ساتھ آئی اور خالہ کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ میں گھر میں اکیلی تھی کہ شام میں دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون ہے؟ جواب ملا، بیٹی میں تمہارا بابا ہوں۔ تمہاری نانی ماں کے لیے گھر سے کچھ اشیاء ہسپتال لے جانی ہے۔ میں نے آواز پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے کچھ مطلوبہ اشیاء گھر سے لی اور کہا، تمہاری نانی اور خالہ رات کو ہسپتال میں ہی رہیں گی، تو کیا تم گھر پر اکیلی رہو گی؟ میں پڑوس والی خالہ کے گھر چلی جاؤں گی انکل۔ بیٹی اس سے بہتر نہیں کہ تم اپنی اماں کے پاس رہ جاؤ۔ ایسا کرو کہ میں تم کو تمہاری ماں کے پاس چھوڑ دیتا ہوں، 1-2 دن کی بات ہے۔ جب تمہاری نانی گھر آ جائیں گی تو واپس آ جانا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ ایک بار اپنی ماں سے لپٹ کر سوئی۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹی؟ جلدی سے فیصلہ کرو۔ مجھ کو تمہاری نانی اماں کو کمبل اور برتن وغیرہ پہنچانے ہیں۔ غرض انہوں نے اتنے پیار سے بات کی کہ میں فوراً کپڑے بدل کر ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ ہسپتال سے پہلے اماں کا گھر پڑتا تھا۔ سوتیلے بابا نے رستے میں گاڑی روک لی۔ بولے، تمہاری اماں ہسپتال سے گھر آ چکی ہیں، ان سے ملو گی؟ ہمارا گھر بھی دیکھ لو۔ میں چپ رہی تو انہوں نے گاڑی موڑ لی اور کچھ آگے جا کر ایک گھر کے گیٹ پر روک کر ہان دیا۔
तभी गेट खुला, सामने मेरी माँ खड़ी थी। उनको देखते ही जैसे मेरे मुर्दा जिस्म में नई रूह पड़ गई। मैं तेजी से गाड़ी से उतरकर गेट के अंदर पहुंची और माँ से लिपट गई। वो भी मुझे खुद से भींचकर प्यार करने लगी। तभी उनके शौहर ने कहा, सुरैया बच्ची घर में अकेली थी, मैंने मुनासिब ख्याल किया कि इसको तुम्हारे पास छोड़ दूं। तुम लोगों ने अगर अस्पताल चलना है तो गाड़ी में बैठ जाओ। अभी तो मैं अस्पताल से आई हूं, घर का काम पड़ा हुआ है, नईम भी स्कूल से आने वाला है, अब जाएं। मैं अभी नहीं जा सकती। ये कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और मैं अम्मा के पास उनसे लगी खड़ी रह गई। मैं माँ के पास पहुंचकर खुश हो गई, नानी की तमाम फिक्र भूल गई। नानी से भी प्यार था, लेकिन माँ आखिर माँ थी। माँ की तो बात ही सबसे अलग थी। सौतेला बाप भी ऐसा बुरा ना लगा। मोहब्बत से बुलाता था और नरमी से पुकारता था, हर फरमाइश पूरी करता, किसी शय की कमी ना होने देता। यहां आकर रूह के काफी कर्ब दूर हो गए थे। मेरे सगे वालिद 2-3 माह बाद कहीं चक्कर लगाते। दूसरी शादी के बाद उनकी मेरी तरफ तवज्जो कम हुई तो नानी अम्मा के घर भी आमदोरफ्त घटती गई। नानी ने भी जानबूझकर उनको अपनी बीमारी की इत्तिला ना दी थी कि मेरे सगे और सौतेले वालिद में अस्पताल में टकराव ना हो। उस वक्त तो अंकल आरिफ और अम्मा ही नानी का इलाज मुआलजा करवा रहे थे। सगी माँ के घर आकर वो खला भी भर गया जो वालिदैन की अलहदगी के बाद से मेरे अंदर बढ़ता रहता था। यहाँ मैं ज़हनी तौर पर खासी आसूदा हो गई थी। जब वालिद साहिब को पता चला कि मैं माँ के पास चली गई हूँ, उन्होंने नानी से बहुत झगड़ा किया। नानी अम्मा ने उनको समझाया कि मुझको दिल का दौरा पड़ चुका है, मरते मरते बच्ची हूँ, लड़की को घर में अकेला कैसे छोड़ देती। वो सगी माँ के पास है तो महफूज हाथों में है। बेटी अरीबा की मंगनी कर दी है, इसकी शादी हो जाएगी। मैं भी ना रही तो साहिबा का क्या बनेगा। मैं अपनी बच्ची को ले जावेगा, अपने पास रखूंगा। मेरे होते ये सौतेले बाप के घर क्यों रहे। ठीक है तो ले जाओ, तुमको किसने रोका है। मैं कल ही साहिबा को बलवा कर तुम्हारे हवाले किए देती हूँ। नानी ने वालिद साहिब से कहा तो उनका गुस्सा ठंडा हुआ। अगले रोज उन्होंने मुझे वालिदा से पैगाम भेजकर बुलवा लिया। अम्मा को इल्म ना था कि क्यों बुलवाया है। वो जब मुझे लेकर नानी के घर पहुंची, थोड़ी देर बाद मेरे सगे वालिद आ गए। वो मुझे लेने आए थे। उनको देखकर मैं खौफजदा हो गई कि ये लेने आए हैं और रोकर मिन्नत करने लगी कि मुझको यहीं रहने दीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। माँ तो दूसरे कमरे में जा बैठी थीं, वो भी रो रही थीं, लेकिन अब्बा को किसी के रोने धोने पर तरस न आया और वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ घर ले आए। उन्होंने अपनी जिद पूरी कर ली, मगर उनकी बीवी ने मुझे देखकर तेवरी चढ़ा ली। बोली, ये वहां ठीक रह रही थी, क्यों ले आए हो। मेरी बेटी है, हकदार है यहाँ रहने की, तभी ले आया हूँ, तुमको क्या तकलीफ है। वालिद ने सख्ती से कहा तो बीवी खामोश हो गई, मगर उसका सलूक मेरे साथ अच्छा ना था। 2 माह में ही मैं सूख कर कांटा हो गई। अगरचे वालिद ख्याल करते थे, किसी शय की कमी ना होने देते थे, तवज्जो रखते थे, और यही बातें सौतेली को बुरी लगती थीं। 2 साल में अपने हकीकी वालिद के घर रही। इस दौरान सौतेली माँ ने एक पल भी मुझको सुकून का सांस न लेने दिया। स्कूल दाखिल न कराया, घर का सारा काम मेरे कंधों पर लाद दिया, अपने 3 बच्चों की आया बना दिया। वालिद ने यहां तक भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एक दिन जब वो अचानक घर आए, मेरे बाजुए पर नील और सर पर चोट के निशान देखकर घबरा गए। अपने कमरे में ले गए और कहा, बेटी डरो नहीं, आज सब कुछ बता दो कि ये औरत तुम्हारे साथ क्या सलूक करती है। मैंने रोकर बताया कि मारती हैं और बहुत जलील करती हैं, खाना भी बासी देती हैं, जिससे मेरा पेट खराब रहता है। अब वालिद को एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे घर लाकर गलती की है। मैं नानी अम्मा के पास ही ठीक थी। बेशक वो कमजोर और बीमार थीं, मगर खाला अरीबा मुझसे बहुत प्यार करती थीं, हर तरह से ख्याल रखती थीं। कहने लगे, तैयार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारी नानी माँ के घर छोड़ कर आता हूँ। इस औरत से तो मैं आकर निपटूंगा। यूं उन्होंने मुझे फिर से नानी माँ के घर पहुंचा दिया, मगर जता दिया कि ये आपके घर रहेगी, बेशक उसकी माँ यहाँ आकर साहिबा से मिल जाया करे, मगर इसको सौतेले बाप के घर ना भेजना। नानी बोली, ठीक है, लेकिन देखो तो मेरी बच्ची की क्या हालत तुम लोगों ने कर दी है। नानी के पास आकर मैंने सुकून का सांस लिया। अगरचे वो ज्यादा चलती ना थी, मगर खाला तो थी, मैं उनके साथ बहुत खुश रहती थी।
यहाँ आकर मैंने फिर से दाखिला ले लिया और स्कूल जाने लगी। एक दिन अम्मा आईं और मुझसे लिपटकर बहुत रोई। बोली, बेटी तेरी खाला की शादी होने वाली है और नानी बीमार है। अरीबा की शादी के बाद मैं अम्मा को यहाँ अकेला तो ना छोड़ूंगी, अपने साथ घर ले जाऊंगी। तुमको मेरे घर रहना होगा। तुमको बाप से डरने की जरूरत नहीं, उनके घर रहकर सौतेली माँ के सलूक का मजा चख आई हो। अब आए तो साफ साफ बात करना, घबराना नहीं। हक ऐसे कभी नहीं मिलता जब तक हक के लिए हम बुलंद आवाज से बात नहीं करते। वालिद मुझे छोड़कर गए तो फिर न आए, अम्मा हमें अपने साथ ले गईं। तभी खाला की शादी हो गई और 6 माह बाद नानी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं मुस्तकिल सगी माँ के पास रहने लगी। मेरे हकीकी वालिद ने गालिबन इस अमर से समझौता कर लिया था कि मैं अपनी माँ के पास ज्यादा महफूज और खुश हूँ। यूं ही वक्त गुजर गया। 9 साल सौतेले बाप के घर रही। उन्होंने मुझको सगे बाप जैसी मोहब्बत दी और कभी इस प्यार में कमी न आने दी। जब मैं 16 बरस की हो गई तो माँ का घर भी मेरे लिए गैर महफूज हो गया कि मेरे सौतेले बाप यानी अंकल आरिफ का बेटा जो अपने मामू मुमानी के घर रहता था, मामू के इंतकाल के बाद अपने बाप के घर आ गया। बल्कि यूं कहना चाहिए कि अंकल आरिफ खुद इसको घर ले आए। ये लड़का जिसका नाम कामरान था कुछ अजीब सा था। ना तो ये ज़हनी तौर पर पूरी तरह सही था और ना पूरी तरह पागल था। इसकी उम्र 31 के लगभग होगी, लेकिन बहुत ज्यादा खाने की वजह से जिस्म फरबा और उम्र ज्यादा लगती थी। वो अक्सर खामोश रहता था, सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता और इंडोर गेम अकेले ही खेलता रहता। मसलन कैरम, ताश, शतरंज गरज सभी खेल अकेले खेलता। उसका काम टीवी देखना और खाना था। जब वो किसी से गरज ना रखता तो कोई भी इससे गरज ना रखता। अम्मा के 3 बच्चे और मैं हम सब आपस में खेलते हंसते बोलते, लेकिन वो सबसे अलग थलग किसी से घुलता मिलता ना था। कुछ दिन हालात मामूल के मुताबिक रहे। अम्मा कामरान का बहुत ख्याल भी रखती थीं कि ये नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं है। इस पर खुसूसी तवज्जो देती, खाने पीने का भी ख्याल रखती, कपड़े वगैरह उजले और इस्त्री करके इसकी अलमारियों में लगा देती और कामरान के सारे काम अपने हाथों से सरंजाम देती कि यही अंकल आरिफ की हिदायत थी। कोई नहीं कह सकता था कि अम्मा इस लड़के की सौतेली माँ है। कुछ दिनों से मैं कामरान में तब्दीली महसूस कर रही थी। वो मुझसे करीब होने की कोशिश करता, मुझे आवाज देकर बुलाता और मेरे साथ कैरम खेलने पर इसरार करता। मैं इसका कहना मान लेती कि बेचारा अकेलापन महसूस करता है और उसका कोई दोस्त नहीं, तो शायद तन्हाई ने इसको ऐसा कर दिया है। खुदा जाने मामू और मुमानी ने इसके साथ कैसा सलूक किया था कि वो ऐसा हो गया, वरना देखने में तो भला लगता है, किसी को गाली देता है और ना जरर पहुंचाता है। जितना खाने को 2 खाता ही जाता है, इसके सिवा इसमें कोई दूसरी बुरी आदत भी ना थी। कुछ दिनों से वो मुझसे उनसियत महसूस करने लगा था। मैं नजर ना आती तो इसकी निगाहें मुझे ढूंढने लगती। थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरा नाम लेकर पुकारने लगता। हर कोई इसके इस रवैये को नजरअंदाज कर देता कि सभी के ख्याल में वो एक नॉर्मल इंसान जैसा था नहीं। रफ्ता रफ्ता उसकी मेरी जानिब वारफ्तगी बढ़ने लगी, तभी मेरी वहशत बढ़ने लगी। अब इसकी नजरों में वो सादा वो बेलोस एहसास ना रहा, बल्कि किसी दूसरी सोच में गर्क रहने लगा। अब मुझको इसकी तरफ देखते हुए खौफ महसूस होता। कभी कभी तो उसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात से झुरझुरी आ जाती। वो घर जो पहले मेरे लिए चमन जैसा था, अब मुझे एक अंधेरा और सुनसान जंगल लगने लगा था। हर लहजा डरी डरी रहने लगी। जाने अब क्या हो जाए, क्या खबर मुझ पर छत गिर पड़े कि जमीन जलजले से अचानक शिक हो जाए। हर सांस खौफ की एक लहर बनकर मेरे सरापे में उतरती थी और यकीन की दीवारों में दरारें डालती जाती थी। इस रोज माँ घर पर ना थी, किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। मैं घर में अकेली थी कि कामरान जो अपने कमरे में सो रहा था, अचानक दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। मुझे तन्हा देखकर उसकी आंखों में एक वहशियाना चमक जागी, जैसे मासूम और बेबस हिरन को देखकर चीते की आंखों में शिकार करने की ख्वाहिश एक झपट बनकर लपकने लगती। मैंने कामरान की जानिब देखा तो मेरे मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। जहां खड़ी थी वहीं मेरा वजूद ठिठर कर रह गया, खौफ से कांपने लगी। सोच रही थी कि आज मैं ना बच सकूंगी। शायद ये मुझको कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ता आ रहा है। आखिर वो बुरी घड़ी आ गई। वो एक खूनखार चीते की तरह मेरी तरफ बढ़ा ही था कि कुदरत को मुझ पर तरस आ गया।
इस वक्त जब ये ताकतवर अधूरे जहन का इंसान मेरी मासूमियत को जख्मी करने वाला था, गेट के लॉक में किसी ने बाहर से चाबी घुमाई। ये वालिदा थीं क्योंकि चाबी उन्हीं के पास होती थी। वो जब बाहर जाती, वापसी में बाहर से गेट को चाबी से खोलकर अंदर आ जाती थीं। सच कहूं कि माँ के आने से एक क़यामत मुझ पर टूटने से रह गई। शुक्र किया कि बचाव हो गया। क्या जानती थी कि ये बचाव तो तबाही का पेश खैमा है, असल क़यामत तो आगे मुंतज़िर है। इसके बाद तो दिन और रात किसी भी वक्त एक लम्हे भी मुझको सुकून नसीब न हुआ। हर पल में एक नए खौफ की मूसलाधार बारिश में भीगती और कांपती रही। माँ भी बखूबी जान गई थी मैं किस वजह से परेशान रहने लगी हूँ। पूछती थी कि क्या बात है, क्यों डरी रहती हो। आखिर मैंने बता दिया कि कामरान से डरती हूँ। बेटी, कामरान आरिफ का सगा बेटा है। तुम्हारी खातिर वो क्यों इसको अपने घर से निकालेगा। यूं भी वो ज़हनी पसमानदा है, तो ऐसे बच्चों की जगह सिर्फ उनके अपने बाप के घर में ही होती है। दूसरे कब उनको रखते हैं। मैं आरिफ से नहीं कह सकती कि तुम कामरान को घर से निकालो क्योंकि मेरी बेटी इससे डरती है। ये बात किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द अज जल्द कोई अच्छा रिश्ता मिले तो तुमको तुम्हारे घर का कर दूं। अब माँ को क्या खबर कि मैं कामरान से क्यों डरती हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर के हैवान को वहशी होते देख लिया था, मगर माँ से ये बात कहने की जुर्रत भी ना हो रही थी। मबादा वो मुझे मेरे हकीकी बाप के हवाले कर दें, जहाँ सौतेली माँ के रूप में डसने को एक नागन मौजूद थी। माँ को अंदाजा होने लगा था कि इस घर में एतमाद की छत किसी भी वक्त गिर सकती है, सो वो रोज आरिफ अंकल का सर खाने लगें कि कोई अच्छा रिश्ता देखिए। मैं लड़की को बया देना चाहती हूँ। जवान बेटी का घर बिठाए रखना ठीक नहीं है। यूं तो आरिफ अंकल बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनको मेरे बया की कोई फिक्र ना थी, या यूं कहना चाहिए कि जल्दी ना थी। अम्मा ज्यादा कहती तो चिढ़ने लगते, और कामरान से तो इतनी मोहब्बत करते थे कि वो इसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते थे। एक दिन पड़ोस में शादी थी। अम्मा अपने शौहर, बच्चों और कामरान के साथ शादी में चली गई। मेरी तबीयत ठीक ना थी, मैं ना गई। जब शादी की रसूमात शुरू हुई और लोग महव हो गए, तो कामरान ने दीवार फलंगी और घर के अंदर कूद आया। देन की आवाज आई तो मैं चौंकी। बाहर निकल कर देखा, वो बरामदे से घर के अंदर आ रहा था। आते ही इसने लाइट बंद की और फिर मुझे दबोच लिया। मेरी चीख निकल गई। मैंने फिर इतनी जोर से चीखें मारी कि वो घबरा गया और मुझे छोड़ दिया। तब मैंने सरपट गेट की तरफ दौड़ लगा दी और खोलकर बाहर निकल गई। होना तो ये चाहिए था कि मैं शादी वाले घर जाकर अम्मा को बताती, लेकिन वहां इस कदर रश था कि उनको भीड़ में तलाश करना पड़ता। मैं तो नंगे सर नंगे पांव भागी थी। सोचा कहाँ जाऊं, लेकिन जिस पंछी के पंख टूट गए हूं, इसकी उड़ान कहाँ तक होती है, भाग कर जाती कहाँ। भागते भागते आगे एक नौजवान से टकरा गई। वो और मैं दोनों ही गिरते गिरते बच्चे। वो बेचारा हवास बाख्ता हो गया। मैंने कहा, भाई मुझे बचा लो, कुछ बुरे लोग मेरे ताकुब में हैं, मुझको मेरी खाला के घर पहुंचा दो। तुम्हारी खाला का घर कहाँ है, उसने सवाल किया। मैंने पत्ता बता दिया। खाला का घर नजदीक न था। कहने लगा, अच्छा, मेरी गाड़ी सामने मौजूद है, तुम उसमें बैठो, मैं तुमको जहां कहती हो पहुंचा देता हूं। दरअसल वो खालू का रिश्तेदार था। मेरे पता बताने से इसने समझ लिया कि ये सही कह रही है। वो मुझे खाला के घर ले आया। जब खाला ने मुझे वहशत ज़दा और इस हाल में देखा तो दंग रह गई। बोले, साहिबा, क्या हुआ है तुझे, और ये तो इस वक्त रात को, सर पर दुपट्टा और ना पैरों में चप्पल। ऐसा क्या हो गया जो तो इस तरह घर से भागी है। मैंने कहा, बताती हूँ खाला, दम तो लेने दो और उनका शुक्रिया कहो जो मुझे यहां तक लाए हैं। अब खाला ने इस नौजवान पर तवज्जो दी और बेइख्तियार उनके मुंह से निकला, अरे ये तो सद्दाम है। सद्दाम तुम यहाँ? हाँ खाला जी, ये मुझे सड़क पर बेसहमी भागती हुई मिले। आपका पता बताया। मैं समझ गया कि मामला संजीदा है, आपके पास ले आया। शुक्रिया बेटा। शायद तुम जानते होगे ये मेरी आपा सुरैया की बेटी है। हाँ खाला जी, जानता था। अच्छा बैठो, कुछ खा पी लो, तब तक इसके भी हवास दुरुस्त हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या बात हुई है। वो खाला के शौहर यानी मेरे इकलौते खालू का भांजा था। खुदा ने मुझको और मेरी इज्जत आबरू को बचाना था कि ये फरिश्ता मेरे रास्ते में आया। उनका घर भी वहां ही था
जहां मैं भागते भागते उनसे टकरा गई थी। शुक्र कीजिए कि इस कहानी का अंजाम अलमिया नहीं बल्कि खुशगवार हुआ। यूं कि जब मैंने सारी बात खाला को सद्दाम की मौजूदगी में बताई तो उनके दिल में नेकी की शमा की लो तेज हो गई, और यूं खालू जान ने खाला के ख्याल की हिमायत करते हुए सद्दाम के वालिदैन को राजी करके मेरी इसके साथ शादी करा दी। जो तहफ़्फ़ुज़ मुझे बाप के घर मिला और नामा के घर, वो मुझे खाला और खालू के जरिया सद्दाम के घर में मिल गया। सच है कि शौहर अच्छा हो तो उसके घर से बढ़कर पुरअमन कोई जगह नहीं, और शौहर से बढ़कर कोई बेहतर मुहाफ़िज़ नहीं। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।